Hello, good morning students. This time I am going to deliver lecture number 11. It is again on differential calculus, course number first. I have taken here some these questions. Some of the questions were posted on my WhatsApp by some student. I took this question first. In this question, Leibniz theorem is not involved. It involves the nth derivative. It is somewhere in our book. It is u is equal to sin nx plus cos nx, and you are asked to prove that ur is equal to n raised power r 1 plus minus 1 raised power r sin 2 nx raised power 1 by 2, where ur denotes the rth derivative of u with respect to x. And there is another example that I had written in the lecture number 10, and we could not solve it there because of the time lapse. So today I want to give it this solution. It is this second question, and third is the question on this pattern. You have some questions in your book where you have to find out yn0. yn0 means the value of the nth derivative at x is equal to 0. चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देते हैं. मैं सबसे पहले यहाँ पर लेता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका सोल्यूशन. दिस इज सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने वहाँ पर लिखा है. It is given that u is equal to sine of nx plus cos of nx. What you have to prove, I will write it. यहाँ मैं ये लिखता हूँ, आपको क्या प्रूव करना है. ये कहता आप प्रूव कीजिए ur means rth derivative is equal to n raised to power r into 1 plus minus 1 raised to power r sine of 2 nx raised to power 1 by 2. ये आपको यहाँ पे डिराइव करना है. सबसे पहले हम जाएंगे इस इक्वेशन को डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. लेट अस डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1. डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x. When you differentiate with respect to x, you get u1. u1 is your first derivative. The first derivative of this with respect to x, it will be derivative of sine here, that is cos nx. तो एंगल में आपको nx है, उसका डेरिवेटिव आएगा बाहर n. Then derivative of cos, it is sine minus sine of nx. तो एंगल में का डेरिवेटिव है nx का विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज n. दैट मीन्स यू कैन राइट हियर, दिस इम्प्लाइज हियर u1. व्हाट इज योर u1? u1 इज n out. आई कैन राइट इट cos ऑफ nx माइनस sin ऑफ nx. इट इज दिस. एंड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, आप देखिए ये जो यहाँ पे मांग रहा है, इसके हिसाब से u1 क्या आना चाहिए? u1 आना चाहिए n रेज पावर 1 प्लस माइनस 1 रेज पावर 1 साइन ऑफ 2nx रेज टू पावर 1 बाई 2. आप देखिए क्या हम ये u1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं. लेट अस सी कैन वी राइट इट इन दिस फॉर्म और नॉट. आई कैन राइट हियर u1 एज दिस u1 इज n टाइम्स. I will write it cos of nx minus sine of nx. Cos nx sine of nx. यहाँ मैं लिखता हूँ इसको स्क्वायर रेज टू पावर 1 by 2. ये 1 by 2 मैंने यहाँ पे चढ़ाया और यहाँ पे 2 नेचुरल, ये इसके बराबर है. ये 1 by 2 क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ किया है 1 by 2. चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. व्हाट इज़ योर u1? u1 इज़ n. इसको ओपन कीजिए बिकॉज ऑफ स्क्वायर. क्या आएगा ये? कॉस स्क्वायर nx प्लस साइन स्क्वायर nx a माइनस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इट इज़ माइनस ट्वाइस साइन ऑफ nx इंटू कॉस ऑफ nx. इसका पावर है जो आपने चढ़ाया यहाँ पे 1 by 2. इसका 2 और 1 by 2 ये अगेन आता है इसके बराबर. देन यू हैव u1 is equal to, you can write it n raised to power 1, and this is cos square nx plus sin square nx. this is your 1. this is minus, ये फॉर्मूला में कन्वर्ट होता है. what is this? sin of 2nx raised to power 1 by 2.
because twice sin theta cos theta is sine of 2 theta. So u1 you have got is equal to n raised power 1. It is 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे ये -1 रेज पावर 1. दिस इज योर साइन ऑफ 2nx रेज टू पावर 1/2. इस क्वेश्चन में आपको लेबनिज थ्योरम की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ी. तो हमने यहाँ पे पहला u1 निकाला, तो u1 को मैंने सिंप्लीफाई करके आपको दिखाया कि ये u1 जो है ये हम लिख सकते हैं u1 इज इक्वल टू n रेज टू पावर 1 n raised to power 1 then 1 plus -1 raised power 1 sine of 2nx raised power 1/2. ये 1 जो है ये कोइंसाइड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव से, और यहाँ पे n raised power 1 जैसे कि यहाँ पे n raised power r -1 raised power r. चलो हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव. क्या सेकंड डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं u2 शुड बी n raised to power 2 1 plus -1 raised power 2 sin 2nx again raised power 1/2. इसलिए हम इस इक्वेशन को ये इक्वेशन नंबर सेकंड में रखता हूँ. ये इक्वेशन नंबर सेकंड में रखता हूँ यहाँ पे. अब मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ. डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे इट इज़ u2. व्हाट इज़ योर u2? इसका डेरिवेटिव जाएगा cos nx का माइनस साइन एंगल का आएगा n, ये बन जा रहा है माइनस n स्क्वायर साइन ऑफ nx. इसी तरह साइन का डेरिवेटिव cos एंगल में n है, ये आएगा माइनस n स्क्वायर cos ऑफ nx. क्लियर? अब हम देखते हैं इसको भी. इसका नाम मैं अगर थर्ड रखता हूँ यहाँ पे, अब इसको देखेंगे क्या हम ये इस सूरत में लिख सकते हैं, इस पैटर्न में लिख सकते हैं कि नहीं. लेट अस सी. यू कैन राइट u2 एज टेक n स्क्वायर आउट. दिस इज योर माइनस साइन nx माइनस cos nx. तो इसको क्लोज किया. यहाँ मैं लिख सकता हूँ u2 इज इक्वल टू n स्क्वायर. दिस आई कैन राइट माइनस साइन nx माइनस cos nx. यहाँ पे मैं रेज करता हूँ इसको पावर 2. नेचुरली यहाँ पर होगा रेज 1/2 ताकि ये 2n 1/2 दोबारा इसके बराबर आ रहा है. अब इसको ओपन करेंगे, देखेंगे क्या ये 2 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, 2 के लिए सेटिस्फाई करेगा कि नहीं. आप देखिए व्हाट इज़ u2. यू कैन राइट n स्क्वायर. दिस इज, इसको ओपन करेंगे. व्हाट इज दिस? इट इज साइन स्क्वायर nx प्लस कॉस स्क्वायर nx. यहाँ पे आपको है माइनस a माइनस बी. जब आप करते हैं माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज सेम एज a प्लस बी होल स्क्वायर. दोनों जगह माइनस है ना, तो यहाँ पे आएगा ये प्लस ट्वाइस साइन ऑफ nx इंटू कॉस ऑफ nx. तो इसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ. ये आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ये वाला सेटअप. ये मैं रब करता हूँ. अब दिस इज़ योर, यहाँ पे 1/2 है पावर इसका, वो कंटिन्यू रखिए आप. इट इज़ u2 इज इक्वल टू n स्क्वायर. दिस इज़ 1 प्लस साइन ऑफ 2nx रेज टू पावर 1/2. इसको हम लिख सकते हैं u2 इज इक्वल टू n रेज पावर n स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ पे आया था नेगेटिव, तो इवन के वक्त आता है पॉजिटिव. -1 रेज पावर 2 मैं लिख सकता हूँ. इट इज़ साइन ऑफ 2nx रेज टू पावर 1/2. अगर मैं इस इक्वेशन का नाम रखूँगा यहाँ पे अल्फ़ा, इसका नाम रखता हूँ बीटा. आप देखिए u1 के, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. हम 1 के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, 2 के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, फिर हम करते हैं बाय दिस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इसका कंक्लूजन. तो अब इक्वेशन जो आपने सेकंड ये थर्ड नाम रखा, अगर आप थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा, ये वाली थर्ड इक्वेशन जो हमें यहाँ पे ये थर्ड, मैं रब कर रहा हूँ. आप देखिए इसको क्या होगा. चलो मैं यहाँ लिखता हूँ डिफरेंशिएट थर्ड इक्वेशन. नाउ differentiating equation third again with respect to x. यहाँ नज़र डालिए आप क्या होता है. इट इज़ u3
इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन, इट इज़ कॉस, एंगल में n, सो इट इज़ माइनस एन क्यूब कॉस ऑफ nx। अब यहाँ ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस, ये बनाएगा इसको प्लस, इट इज़ प्लस एन क्यूब साइन ऑफ nx। तो ये मुझे ज़रूरत नहीं है, u2 मैंने लिखा उसका बीटा, आई डोंट नीड इट नाउ। यहाँ पर भी इसी तरह हम जाएंगे, u3 इट इज़ n क्यूब आउट, आई कैन राइट इट साइन ऑफ nx माइनस कॉस ऑफ nx, यहाँ रेज किया स्क्वायर, होल किया रेज 1/2, इसको जब हम ओपन करेंगे ये आएगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिस तरह यहाँ पे मिला हमें, इस बिल्कुल इस तरीके से जाएगा। आपको u3 आएगा आपको n क्यूब, इट इज़ 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 रेज पावर 3, क्योंकि माइनस 1 रेज पावर 3 यहाँ तो ये नेगेटिव आएगा, ये ओपन करके मैंने लिखा माइनस 1 रेज पावर 3 ताकि मैं इस डेरिवेटिव के साथ इसको कोइंसाइड करूँ। इट इज़ साइन ऑफ 2nx रेज टू पावर 1/2। आप लिख सकते हैं, आप सिमिलरली जब हम इस इक्वेशन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब इसको अगर फोर्थ को हम दिखेंगे, फोर्थ similarly differentiating equation number fourth again with respect to x, what we get u4 फोर्थ डेरिवेटिव, यहाँ u4 के वक्त नेचुरली यहाँ पे आएगा n4, फिर यहाँ पे आएगा 1 एज यूजुअल, यहाँ पे आएगा आपको पॉजिटिव, इस केस में पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, जिस तरह वहाँ पे आएगा u2 पे। सो यहाँ पे लिखेंगे आप -1 रेज पावर 4 इज़ पॉजिटिव, क्योंकि हम इसको कोइंसाइड करवाते हैं इस डेरिवेटिव के साथ। दिस इज योर साइन ऑफ 2nx रेज टू पावर 1/2। So when we proceed of taking alpha, beta, gamma and so on, when we proceed for nth derivative, proceeding up to nth derivative, जब हम nth डेरिवेटिव से जाएंगे, जैसे कि आपने देखा अल्फ़ा, बीटा और गामा में हम गए, यहाँ निकाला u1, वहाँ निकाला u2 निकाला हमने, u3 निकाला, u4 भी निकाला हमने, ठीक है। तो दिस implies that your rth derivative will be what? n raised to power r. This is 1 plus -1 raised to power r sine of 2nx raised to power 1/2. So by this way we could do this question also. इसमें लेबनिज़ थ्योरम की ज़रूरत नहीं थी, ये एक्चुअली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए आपको था। आपको यहाँ पे गिवन था u इज साइन nx प्लस कॉस nx, ये आपसे मांग रहा था rth डेरिवेटिव इस तरह। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, इसको u साइन nx प्लस कॉस nx, यहाँ से डिफरेंट रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, डिफरेंट रिजल्ट, बट वी हैव टू कन्फाइन टू द रिजल्ट जो ये मांग रहा है आपको, u r इज n रेज पावर r 1 प्लस -1 रेज पावर r साइन 2nx रेज पावर 1/2, क्योंकि इस केस में राइट हैंड साइड का होना ज़रूरी है। जब यहाँ पे राइट हैंड साइड इसने दिया है, हम इसी के हिसाब से गए, तो इसको हमने दिया ये वैल्यू कि हम और डेरिवेटिव जो है या pth डेरिवेटिव जो है हम लिख सकते हैं u p n रेज पावर p 1 प्लस -1 रेज पावर p साइन 2nx रेज पावर 1/2। सो बाय दिस वे वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन नंबर 1। ये किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे छोड़ा था ये क्वेश्चन, इसका मैंने आंसर दिया, मैंने इसको जल्दी ख़त्म किया वरना ये बाद में मैं भूल जाता। नाउ लेट अस हैव अनदर क्वेश्चन। हाँ, ये है सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। आपको यहाँ पे गिवन है, गिवन y इज इक्वल टू, इट इज़ लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, या इसने दिया और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ये हो या ये हो, ये एक ही है। अब आप कहेंगे कैसे?
अगर आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही है तो मैं आप प्ले लिस्ट में जाइए जहाँ आपको बेसिक सब इंटीग्रेशन है, वहाँ मैंने बताया साइन इनवर्स एक्स बाई ए कॉस इनवर्स एक्स बाई हाइपरबोलिक फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने वहाँ पे बताया। तो एक्चुअली वहाँ पे हमारे पास ये है जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए वो आता है हमें लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए। इसी तरह अगर आपको साइन इनवर्स एक्स खाली होगा वो क्या आएगा, दैट विल बी लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए। यहाँ पे 1 है हमें, जिस साइन इनवर्स एक्स बाई 1 ये 1 है। देखो ये और ये सेम है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको खाली वहाँ क्वेश्चन में दिया है y इज साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, मीन साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसके बराबर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो या दोनों के लिए एक ही रिजल्ट हमें निकालना है। ये जो मांग रहा है यहाँ हमें यूज़ होगा लेबनीज़ थ्योरम। देखिए कैसे जाएंगे हम, ये गिवन है आपको। अगर आपने इस यहाँ से स्टार्ट किया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, फिर आपको साइन इनवर्स का x का दिया आपने तो आप यहाँ पहुँचेंगे। तो दिस क्वेश्चन इज सेम एज दिस। तो कैसे हम जाएंगे, आप डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। लेट अस डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, ये आएगा आपको y1। कैसे जाएगा डिफरेंशिएट, 2 डाउन 2 नीचे आया, इट इज़ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफ्रेंसिएशन 2 नीचे, पावर डिक्रीज बाय 1 2 माइनस 1, फिर इंटरनल डेरिवेटिव लॉग का इसका ख्याल कीजिए। लॉग ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई द एफ एक्स, इट इज़ 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जो एफ एक्स है लॉग ऑफ एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव ये आपका एफ एक्स है, एक्स का 1 प्लस रेडिकल करके आएगा 1 बाई ट्वाइस द रेडिकल ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जाएगा डेरिवेटिव यहाँ पे 2x। मैं दोबारा बताता हूँ कैसे जाता है। यहाँ पे पावर था आपको 2, अगर पावर 2 नहीं होता तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना था डायरेक्ट, लॉग ऑफ एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स इंटू दिस, क्योंकि पावर 2 है, 2 हमने डाउन किया, 2 को डिक्रीज किया बाई 1 तो ये आया। फिर लॉग ऑफ दिस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है log of fx 1 by the fx, your fx is x plus under root of 1 plus x square, 1 by fx जो fx है उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखना है, x का आएगा डेरिवेटिव 1, तो रेडिकल का है 1 by ट्वाइस द रेडिकल, रेडिकल के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर वो आएगा 2x। अब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, देखेंगे ये कहाँ पहुँचेगा। वेल दिस इज योर y1 इज इक्वल टू ट्वाइस log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने ये लिखा 1 बाई दिस, इसका जाएगा ऊपर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चूँकि ये और ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल होगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा y1 इज इक्वल टू 2 times, it is 2 times log of x plus under root of x square plus 1 by under root of 1 plus x square। अगर हम यहाँ दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेटर एंड बेस्ट इज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। हमारा एम है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, yn प्लस 2 मीन्स तो हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है y2 को हम करेंगे nth डेरिवेटिव, वो आएगा yn प्लस 2। तो इसको करेंगे हम स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे हमें ये रेडिकल डिफ्रेंसिएशन भी बच जाएगी। स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों चीज़ हम करते हैं इसको, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आएगा, इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर जाएगा 4, 2 है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर आएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन इस पर नज़र डालिए आप, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये चीज़ जो है ये हमारे पास पहला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर
1. सो यूजिंग 1, जब हमने 1 को यूज़ किया तो हमें आता है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपली ये आता है y के बराबर 4y. अब इस वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, ताकि हमें डिफरेंशिएट करके क्या इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा आपको y2. नाउ डिफरेंशिएट दिस अगेन, डिफरेंशिएट अगेन with respect to x, differentiate this equation again with respect to x. जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, y1 स्क्वायर का आएगा ट्वाइस y1 y2, twice y1 y2 into 1 plus x square as it is, then plus y1 square as it is, 1 plus x square का डेरिवेटिव जाएगा 2x, वो हमने लिखा है यहाँ पे 2x. अब राइट साइड है 4y, इसका आएगा 4y1, 4y1. ये हमें यहाँ तक मिला. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, cancel 2y1 on both sides. We can cancelling 2y1 or dividing by 2y1 both sides, cancelling 2y1 from both sides. 2y1 khatam, it is y2 1 plus x square. यहाँ पे y1 2 भी x y1 खाली, यहाँ पे 2y1 खत्म, it is only 2. Now differentiate this equation. यहाँ से हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे बाय लेबनीज़ थ्योरम, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है लेबनीज़ की जो इक्वेशन हमें ये डिराइव करनी है, वहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव yn प्लस 2 है. सो वी डू डिफरेंशिएट n टाइम्स बाय लेबनीज़ थ्योरम. चलिए, इट इज़ NC0 UN. प्रीवियस मेथड की तरह हम ये लेते हैं डेरिवेटिव वाला nth u, इसका n डेरिवेटिव y n प्लस 2. देन v एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सेकेंड टर्म इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका सेकेंड टर्म क्या आएगा, NC1. इसका डेरिवेटिव रिड्यूस होता है क्योंकि सेकेंड टर्म में हमें आता है बाय लेबनीज़ थ्योरम में NC1 un माइनस 1. इसका n माइनस 1 होगा y n प्लस 1. इसका v1 आता है, दैट इज़ 2x. देन प्लस NC2, इसका yn जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2. यहाँ स्टॉप करना है. क्यों स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट बना, अगर हम इसके आगे जाएगा इस कांस्टेंट का v2 बनेगा 0. चलिए, इसका तो हो गया. अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव यहाँ भी हमें लगाना है, क्या, लेबनीज़ थ्योरम. कैसे जाएंगे, प्लस शाबाश NC0 un, that is इसका n डेरिवेटिव yn प्लस 1, v as it is, that is x. then प्लस NC1 yn माइनस 1, vx का 1. यहाँ स्टॉप करेंगे, ये कांस्टेंट बना, इज इक्वल टू राइट साइड में कांस्टेंट है, ये 0 जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि क्या हमें वो इक्वेशन मिल रही है. ये आपका 1 के बराबर है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. मैं लिखता हूँ पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, ये n है. तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया आपको, ये हम डायरेक्ट लिखते हैं. n क्यों लिखते हैं, वहाँ आप देखिए, वहाँ जाइए उन लेक्चरों में, ये लिखेंगे हम खाली अब n माइनस n इंटू n माइनस 1/2 बाई यूजिंग द कम्बिनेशन फार्मूला. सो दिस इज़ योर n ये है, और ये x इट इज़ 2nx yn प्लस 1. यहाँ आइए, इट इज़ प्लस n इंटू n माइनस 1/2 yn, और ये 2 ये चला गया. दिस इज़ 1, दिस इज़ प्लस x y n प्लस 1, ये है आपका n प्लस n y. इट इज़ नॉट n माइनस 1, यहाँ पे हम जब जाते हैं x yn प्लस 1, ये yn है आपका, इट इज़ yn. मैंने यूज़ किया था un माइनस 1, बट हेयर माई un इज़ yn प्लस 1, सो un माइनस 1 विल बी yn. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट अस सम अप द टर्म्स. Likewise term, it is your 1 plus x square yn प्लस 2, ये yn प्लस 1 वाला और ये yn प्लस 1 करेगा कनेक्ट, इट इज़ प्लस 2n
प्लस 1, x दोनों से कॉमन और yn प्लस 1 भी कॉमन, फिर प्लस यहाँ ये और ये कॉमन निकालेंगे, इट इज़ n स्क्वायर माइनस n प्लस n yn इज इक्वल टू 0। ये और ये गया तो रिजल्ट आपको मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर yn। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो ये मांग रहा था आपको इस क्वेश्चन में। तो ये लॉग वाला भी मैंने आपको दिखाया, तो ये कैसे करते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जहाँ आपको yn0 निकालना है। yn0 में बताता हूँ कैसे जाएंगे आप, ये कैसे करेंगे आप। इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपके बुक से ही निकाला, चलो ये मैं क्वेश्चन भी लिखूँगा। पहले मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, क्या है, ये है थर्ड वाला। आपको y है log ऑफ इसी तरह x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, या ये इस तरह भी आता है और y इज इक्वल टू, एक ही बात है, शाइन इनवर्स x, क्योंकि शाइन इनवर्स x इसके बराबर है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, फाइंड yn0। ये क्या होता है yn0? yn0 का मतलब है y1 फर्स्ट डेरिवेटिव एट x0। ये एक्चुअली इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। जब हम लिखते हैं yn0, इट एक्चुअली मीन्स वैल्यू ऑफ yn एट x इज इक्वल टू 0। फिर आप लिखिए y2, दैट मीन्स y20 अगर आप यहाँ लिखेंगे y20 मीन्स वैल्यू ऑफ y2 एट x0, y30 मीन्स वैल्यू ऑफ y3 एट x0। ये आप देखिए हम कैसे जाएंगे इसमें। मैं ये भी रब करूँगा इस साइड। इसको भी हम बिल्कुल करेंगे लेबनिज थर्म से, लेकिन थोड़ा एंड में इसको इवन एंड ऑड के वक्त देखना है क्या हो रहा है यहाँ पे, उसका ख्याल रखना है बस आपको, और कुछ नहीं। ये मैंने आपको बताया यहाँ कैसे जाना है। तो चलिए ये जो मेरे पास है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन है। यहाँ से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, ये मुझे मिलेगा y1, ओके, इट इज़ 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इसका इंटरनल डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस रेडिकल का 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रेडिकल के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 2x आता है। तो ये जाएगा आपको y1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल, इट इज़ योर x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये गया, यहाँ से आपको मिला y1 इज़ 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ ही निकाल सकता हूँ, ये मैं निकाल के रखूँगा एट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में एट x इज इक्वल टू, एंड पे भी हम निकालते हैं लेकिन यहाँ पे फिर ये सेव करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा यहाँ पे। एट x इज इक्वल टू 0, इसमें क्या हुआ आपको y1 0। अब समझ आया आपको, एट x इज इक्वल टू 0 मीन्स वैल्यू ऑफ y1 एट x0, वी राइट इट एज y1 0। क्या मिला ये, इट इज़ इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0, इट इज़ योर 1। ये मैं यहाँ सेव करके रखूँगा, ये आगे मुझे काम आएगा। आप इसी तरह करना। मुझे y1 एट 0 मिला मुझे 1 के बराबर। चलो अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा, y2 भी, फिर मैं लेबनिज थ्योरम, y3 y4 y5, वो तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसको मैं करूँगा स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, जिस तरह वहाँ पे किया पिछले वाले क्वेश्चन में, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बेहतर रहता है, इनके रेडिकल डिफ्रेंसिएशन यहाँ से बचता है इससे। चलिए ये देखिए आप क्या हमें मिलता है स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई से। इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल से जाएंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आएगा 2x
y1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, फिर y1 स्क्वायर का आएगा 2y y2 इज इक्वल टू 1 का 0। यहाँ पर भी आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसलिंग 2 इट इज़ 2y1 it is 2y1 y2, yes, cancelling 2y1 from both sides, या dividing, or you can write divide both sides by 2y1. Of course your y1 is not 0, even at x is equal to 0 y1 is not 0. You have seen here we can divide it without any ambiguity, we can divide by 2y1. well 2y1 से हम ऑल द वे डिवाइड कर सकते हैं, इवन इफ एक्स इज 0, हमारा y1 0 के बराबर नहीं है, हम तो ये कर सकते हैं 2y1 यहाँ से चला गया, इट इज़ एक्स y1 प्लस यहाँ से भी 2y1 चला गया, इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 0, और दिस इज योर y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर भी निकाल के रखेंगे क्या हो रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज 0, यहाँ हम देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या मिल रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0, आप देखिए इट इज़ y2, इक्वेशन आ रही है y2, इट इज़ 1 प्लस 0 देन प्लस 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स y2 आता है 0, इसका मतलब है y2 एट एक्स 0 है 0 के बराबर। यह मैं ये सेव करके रखूँगा, y2 एट एक्स 0 मुझे मिला किसके बराबर, 0 के बराबर। फिर मैं इसको आगे ले लूँगा, जनरलाइज करूँगा कि ये क्या आता है yn0 व्हेन n इज़ इवन n इज़ ऑड। चलो अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन जो आपको करने हैं ये आपको कुछ क्वेश्चंस बुक्स में है, चाहे BTech इंजीनियरिंग की बुक हो या आपको ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बुक है, वहाँ आपको ऐसे क्वेश्चंस है, गिवन द क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट yn0 इन डिफरेंट केसेस। तो आप ऐसे ही जाना है, लेबनिज़ थ्योरम का आपको यहाँ पे सहारा ज़रूर ले लेना है। हम इस तरह जाएंगे, हम इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं n टाइम्स बाय लेबनिज़ थ्योरम, उसके मदद से हम आगे निकाल सकते हैं व्हाट इज़ y30, व्हाट इज़ y40, व्हाट इज़ y50, y10 और y20 हमने निकाल के रखा, ये हमें आगे काम आएगा। देखो कैसे डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन, differentiate n times by Leibniz theorem, ठीक है, इसको आएगा n डेरिवेटिव nc0, इसका n डेरिवेटिव yn प्लस 2, v है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह देन प्लस nc1 yn प्लस 1 2x प्लस nc2 yn ओनली yn 2, ये यहाँ पे आएगा। फिर ये टर्म है प्लस nc0 yn प्लस 1, दिस इज योर u, v एज इट इज, प्लस nc1 yn x का 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने निकाला इक्वेशन बाय डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनिज़ थ्योरम। लेकिन हमारा काम क्या है, yn0 निकालना है, वैल्यू ऑफ yn एट x इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे इस इक्वेशन में एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 क्या हमें मिल रहा है, पुट x इज इक्वल टू 0, x को हम 0 देते हैं, देखिए क्या आ रहा है, अब यहाँ आइए, अब एट एक्स 0 पे देखिए, जब हमने x को दिया 0, ये हमें पता है nc0 1 के बराबर है, ये 0 है, ये खाली यहाँ पे बचाएगा yn प्लस 2, इट इज़ yn प्लस 2 ओनली। दोबारा मैं बताता हूँ, x जा रहा है 0, ये ख़त्म हुआ, ये 1 के बराबर है nc0, ये yn प्लस 2 यहाँ पे बचता है। चलो ये टर्म देखिए, दिस टर्म विल नॉट सर्वाइव बिकॉज यूर x इज़ 0, ये तो ख़त्म गया, ये तो रहेगा यहाँ पे, इट विल बी प्लस 2 n इंटू n माइनस 1/2, ठीक तरह से देख इसका वैल्यू yn। हाँ यहाँ आइए, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहा फॉर x 0, लेकिन ये तो यहाँ रहेगा प्लस nc1 मीन्स n/n इज इक्वल टू 0। x को हमने 0 दिया, ये दो टर्म्स ख़त्म हुए क्योंकि इनके साथ x था, ये भी ख़त्म हुआ, ये पार्ट इसका, फिर सिंपलीफाई करके हमें ये खाली मिल रहा है, दिस इज योर yn प्लस 2। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा
अपनी एब्रीवेशन, अपनी नोटेशन yn plus 2 0 मीन्स वैल्यू ऑफ n plus 2 फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं लिखूँगा इसका, ये क्या यहाँ पे आ रहा है, इट इज़ n स्क्वायर माइनस n प्लस n, इट इज़ yn। यहाँ भी लिखूँगा एट x 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मुझे बच रहा है वो देखिए आप ये देखिए आप ठीक तरह से। अब हम कैसे जाएंगे, यह में आ रहा है y n प्लस 2 एट x 0, ये जाएगा इस साइड, इट इज़ माइनस n स्क्वायर y n 0। इस इक्वेशन का नाम मैं रखता हूँ अल्फ़ा। ये जनरल इक्वेशन डेवलप हो गई। यहाँ से आप हर एक चीज़ आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y3 डेरिवेटिव, y3 थर्ड डेरिवेटिव एट x 0, फोर्थ डेरिवेटिव एट x 0, फिफ्थ डेरिवेटिव एट x 0 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे n को वैल्यू देते हैं। n तो हमें मिलता ही 1 से, क्योंकि ये डेरिवेटिव नंबर है, ये ऑलवेज स्टार्ट होता है 1 से। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 सेकंड डेरिवेटिव, ये 0 माइनस वगैरह से नहीं स्टार्ट होता है। यहाँ n को हम देंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। जब हमने n को दिया 1, यहाँ दीजिए इट इज़ y30 आपको मिलता है। y30 क्या आता है, माइनस 1 स्क्वायर ये y10, चूँकि आपके पास y10 है वहाँ पे, व्हाट इज़ दैट 1, सो इट इज़ माइनस 1 स्क्वायर इंटू 1। इसलिए मैं यहाँ पे सेव करके रखूँगा। यहाँ पे मेरा y30 क्या आया, शाबाश, y30 ये आया माइनस 1 स्क्वायर ओनली। चलो अब इसी इक्वेशन में मैंने y31 यूज़ किया। आप भी देखो ठीक तरह से, इस 1 को मैंने यूज़ किया। अब मैं 2 को यूज़ करता हूँ, दैट मीन्स y40 इट इज़ माइनस 2 स्क्वायर, इट इज़ y20। लेकिन y20 क्या आया वहाँ पे, 0, दैट मीन्स इट इज़ 0 बिकॉज y20 इज़ 0। सो दिस मीन्स मेरा y4 एट x 0 आता है 0। इसको भी मैं सेव करके लिखूँगा, y4 एट x 0 इज़ 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये मैंने निकाल के रखा। अब मैं यूज़ करूँगा, ये 2 मैंने किया, अब मैं 3 यूज़ करूँगा। चलिए, y3 प्लस 2 एट x 0 इट इज़ माइनस 3 स्क्वायर, दिस इज़ y3 मैं दे रहा हूँ, y30 का वैल्यू मेरे पास है माइनस 1 स्क्वायर। ये मैं लिखूँगा माइनस 1 स्क्वायर इंटू माइनस 3, सॉरी ये अलग है, माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये देखिए आप, y3 के वक्त मुझे इट इज़ एक्चुअली y5, तो y5 मुझे आता है, y5 2 बार यहाँ पे माइनस है, इट इज़ माइनस 1 2 बार है, माइनस 1 रेज़ पावर 2, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव जो है, इसका ख्याल रखिए आप, डेरिवेटिव 5 है। मुझे इस 5 को इन्वॉल्व किसी भी तरीके से करना है। डेरिवेटिव यहाँ पे है 5, तो यहाँ माइनस 1 स्क्वायर। फिलहाल मैं यहाँ सेव करके इसको रखूँगा, y5। आप देखिए y5 एट x 0 क्या आता है, ये मुझे 2 बार आया माइनस, मैंने यहाँ पे लिखा माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। चलो ये मैंने लिखा। अब मैं यूज़ करूँगा 4 भी, देखूँगा क्या आएगा। 4 में यूज़ करूँगा, n को 4, इट इज़ y60 इट इज़ माइनस 4 स्क्वायर, इट इज़ y40, लेकिन y40 वहाँ से 0, इट इज़ 0 मीन्स y6 एट x 0 आता है 0 के बराबर। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगा, 4 मैंने किया, 5 मैं करूँगा, यह आएगा मुझे y7 एट 0, देखो क्या आएगा, माइनस 5 मैं यूज़ कर रहा हूँ, माइनस 5 स्क्वायर y50, इट इज़ माइनस 5 स्क्वायर y50 क्या आता है मुझे, वहाँ देखो आप, y50 मैंने निकाला, इट इज़ माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ माइनस 1 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 बार आता है। इट इज़ आपका पहला 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर देन 5 स्क्वायर। मैं यहाँ सेव करके रखूँगा, y70 क्या आया मुझे, y70, डू यू फॉलो मी, इट इज़ माइनस 1 रेज़ टू पावर 3, 3 बार आया यहाँ पे माइनस, इट इज़ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर सो ऑन। चलिए अब डैश डैश सो ऑन। अब मुझे यहाँ पे देखो, अगर हम देखेंगे
y1 के वक्त आया नॉन ज़ीरो ऑड डेरिवेटिव, y2 ज़ीरो के वक्त ज़ीरो, y4 ज़ीरो के वक्त ज़ीरो, y6 ज़ीरो के वक्त ज़ीरो। मीन्स व्हेन n इवन है ये आता है हमें ज़ीरो के बराबर। अगर हम इसको आप सम अप करेंगे, यहाँ से देखिए आप भी इसी तरह करेंगे सेव, दूसरे क्वेश्चन में इसी तरह जाना आप, फिर आपको समझ आएगा कौन क्या आता है यहाँ पर। देखिए आप कैसे जाएंगे। ये जो हमने यहाँ रिजल्ट्स निकाल के रखे आपके लिए, आप देखिए क्या हो रहा है। y2 at x 0, y2 at x 0 is 0, आपका y3 4 at x 0 is what 0, आपका सिक्स्थ डेरिवेटिव at x 0 is what 0। इसी तरह अगर आप निकालेंगे 8th डेरिवेटिव at x 0 that is 0, that is so on to yn at x 0 is 0। कब when n is equal to even। देखो even 2 4 6 8 और yn 0। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट y ऑफ n एट x 0 इज 0 फॉर n इज इक्वल टू इवन। अगर हम n को अब इवन वैल्यू रिप्लेस करेंगे, से n इज इक्वल टू 2n, n को रिप्लेस किया 2n, सो आपका y 2n, दिस इंडिकेट्स इवन वैल्यूज, इवन वैल्यू। n को दीजिए 1 2, n को दीजिए 2 4, 3 दीजिए 6, इट इज़ इक्वल टू 0। यह हमें मिला फर्स्ट वैल्यू, y n 0 बट n इवन। क्लियर, एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट हमें मिल रहा है ये वाला, देखो ये y3 फिर y5 ये आता है, फिर आपका y7 ये आता है, और आप लिख सकते हैं डायरेक्टली y क्या इसको कहते हैं 9 भी। ना ऑड वैल्यूज़ पे, ये इवन वैल्यूज़ पे हमें मिला 0, ये मैंने सम अप किया। चलिए अब आप लीजिए ये, नाउ आपका y1 एट x 0 है 1 के बराबर, आपका y3 एट x 0 है -1 के बराबर, आपका y5 एट x 0 है, y5 यहाँ पे -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, आपका y7 एट x 0 क्या आया -1 क्यूब 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली करना है आपको। मैं पहले लिखूँगा y1 और डेरिवेटिव एट x 0 है 1 के बराबर। अब ये थर्ड y3 एट x 0 इज़ -1 स्क्वायर। इसको हम कैसे करेंगे, इट इज़ एक्चुअली अगर हम देखेंगे ये -1 रेज़ पावर 1 आता है 1 स्क्वायर -1 रेज़ पावर 1, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव क्या मेरे पास है, डेरिवेटिव है थर्ड। इस थर्ड को यहाँ मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं ये इस तरह लिखूँगा -1 रेज़ टू पावर 3 -1/2 इंटू 1 स्क्वायर, चलेगा? आप देखो 3 -1 है 2/2 आया ना, -1 रेज़ पावर 1, और हमारा ये 3 जो है ये यहाँ पे डेरिवेटिव नंबर इन्वॉल्व हो गया। अब आप जाइए y5 पे, y5 कहाँ पे है, वहाँ पे इट इज़ -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। मैं इसको लिखूँगा इस हिसाब से, -1 रेज़ टू पावर डेरिवेटिव क्या है 5 -1/2। आप देखो 5 -1 4, इट इज़ 2 4/2 दैट इज़ 2 आया ना ये 2। अब यहाँ देखिए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ भी हम लाएंगे कुछ मतलब इसका सिमेट्री। यहाँ पे 1 स्क्वायर है, ये लास्ट टर्म क्या आता है इसका 3। अगर हम इस नंबर के साथ इसको कोइंसाइड करेंगे, इस 3 के बदले में यहाँ पे लिखूँगा इट इज़ 5 -2 स्क्वायर, इट इज़ योर n, ओके, दिस इज़ योर n 1 स्क्वायर। ये 5 -2 क्या आता है 3 स्क्वायर, 5 है नंबर। अब देखिए वहाँ पर भी हम करेंगे, व्हाट इज़ योर y7 7 डेरिवेटिव एट x 0, इट इज़ एट x 0। 7 पे जाइए आप, इट इज़ -1 रेज़ टू पावर 3 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। इसको भी मैं लिख सकता हूँ इस तरह, -1 रेज़ पावर 7 -1/2। आप देखिए 7 -1/2 क्या आता है 6/2, इट इज़ 3। ये 7 क्यों मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ये नंबर है यहाँ पे डेरिवेटिव नंबर। आप देखिए ये डेरिवेटिव नंबर में इस तरह भी इसमें भी इन्वॉल्व करूँगा। 1 स्क्वायर है ओके, 3 स्क्वायर है ओके, लास्ट टर्म क्या है 5 स्क्वायर, लेकिन हमारा डेरिवेटिव क्या है 7। आई विल राइट इट 7 -2 स्क्वायर।
आया ना 5 स्क्वायर। अब आप सिमेट्री के हिसाब से लिखेंगे ऑड वैल्यूज़ के लिए। जब आपको y 9 एट x 0 होगा, क्या लिखेंगे आप ये इस हिसाब से? आप लिखेंगे -1 रेज़ पावर 9 - 1/2। आप लिखेंगे यहाँ पे 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यहाँ ऑफ कोर्स आएगा 5 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा फिर टर्म 9 - 2 का स्क्वायर। सो ऑड के वक्त आपको पता चला 10 फॉर n is equal to odd, when n is odd. What is yn at x 0? yn at x 0 इस हिसाब से it is -1 raised to power n - 1/2, -1 raised power n - 1/2 हिसाब से। ये आता है आपको 1 स्क्वायर, देन इंटू 3 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर, देन 7 स्क्वायर, लास्ट में क्या आएगा ऑड? इट इज़ n - 2 का स्क्वायर। अगर इससे आगे जाएगा दैट विल बी n। अगर आप यहाँ लिखेंगे कोई टर्म दैट इज़ कमिंग बैक प्रोसीडिंग टू दिस, यहाँ अगर आप देखेंगे क्या होगा आप, दैट विल बी योर n - 3 का स्क्वायर। अगर इससे आगे देखेंगे दैट विल बी n - 5 का स्क्वायर। तो ये है इसका yn 0 व्हेन n इज़ ऑड, व्हेन n इज़ ऑड, n इज इक्वल टू ऑड। हाँ, अगर आप n इज इक्वल टू ऑड का आप रिप्लेस करेंगे, से इफ़ यू रिप्लेस हियर इन दिस केस, रिप्लेस n बाय n इज इक्वल टू 2n + 1। ये है ना ऑड आपका, ऑड यहाँ से आप रिप्लेस नहीं 2n + 1, यहाँ थर्ड से आपको मिलेगा बेटर इज टू राइट 2n - 1। अगर आप 2n - 1, क्योंकि जब हमने n को दिया 1, 2 - 1 मिला फर्स्ट डेरिवेटिव, n को दिया 2, 4 - 1 थर्ड डे, ऑड वैल्यूज इसी तरह मिलते हैं। अगर आपने n को यहाँ पे रिप्लेस किया 2n - 1, यहाँ आएगा तो आपको 2n - 1 एट x 0 -1, यहाँ भी आप लिखेंगे 2n - 1 दैट इज़ ओनली यू विल गेट हियर, यहाँ n को दीजिए रिप्लेस बाई 2n - 1, वो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा उस वक्त, शायद वो आएगा n - 1 यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। यहाँ भी आप देख सकते हैं n को लास्ट पे 2n - 1, ये आएगा आपको 2n - 1। तो इस तरह हम करते हैं इसका क्या इसका नाम है, इवन वैल्यूज़ पे क्या आता है, ऑड वैल्यूज़ पे क्या आता है। तो ये है तरीका कि yn 0 निकालने का इन डिफरेंट क्वेश्चंस। आई थिंक विद दिस वी कंक्लूड ऑल द एप्लीकेशन इज ऑन लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम इस तरह कंक्लूड हो गया। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे शायद पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैंने आपको बताया नेक्स्ट टाइम हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पे जाएंगे। एंड टिल देन यू रिवाइज दिस एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।